Good evening, Raghav. Good evening, sir. Yes. Can you hear my voice? I don't have power actually. Yes, I can hear your voice. Yeah, my Wi-Fi is very low actually. So I'm using mobile data. So Okay. yeah, you just revise for 5 minutes. Let your friends. Okay. By that time, I also might get power. So we'll start the class. You revise your concept for 5 to 10 minutes. Okay, Okay. Sir. please. Turn on your turn on your cameras, please. Yes. So today you'll be having a test on circuits actually. Okay. Today you'll be having a test on circles. So when? Circles. Tomorrow morning 10 a.m. and you're gonna finish your test by 7 a.m. So finish your test before 7 p.m. So I request everyone please do attempt the test, both of you. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Look at this. So we'll solve questions, couple of questions that basic, I mean, like, easy questions only will be there tomorrow. Easy means like you can able to solve that if you are able to follow the class notes. Okay. So I'll give the questions now. Let me share the screen. Take a question, please. If a circle passing through the point 4, 0 touches the circle, x square plus y square plus 4x
minus 6y is equal to 12. Externally, is a 0.1 comma minus 1. Then the radius of circle is equal to dash 2 root 5, 4, option D. Root 57, make it fast. What happened? See, very simple question. So if a circle passing through the point 4 comma 0 touches the circle this for externally at the point, externally touch कर रही है तो क्या करना है? पहले tangent equation निकालो. What is the tangent equation? जल्दी से बताओ, जल्दी से. Done. अरे simple है भाई. Equation of tangent. What is the equation of tangent? Tell me. What is the equation of tangent? First we find equation of tangent. Just find out circle passing through the point 4 comma 0 touches the circle. No, circle passing through the point 4 comma 0 touches the circle externally at the point 1 comma 1. तो tangent तो externally होता है ना. So what is the equation of tangent? Equation of tangent at 1 comma minus 1. What is that? So x minus y 2 times of x plus 1 minus 3 into y minus 1 तो minus 12 minus 12, isn't it? हाँ, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग इट एक्सटर्नली मैंने बताया था कल के क्लास में, s plus lambda, isn't it? So solve this x minus y plus 2x plus 2 minus 3y plus 3 minus 12 is equal to 0. तो 3x minus 3y कांस्टेंट्स कितना 2 plus 5 5 minus so minus 7 is equal to 0. This is what I got. Now what is the equation of circle? This is the equation of tangent हो गया. तो equation of circle बताओ मुझे. X square plus y square. So look at this here. We have to find out radius. For finding the radius, we have to do all this stuff. Okay. हाँ. चलिए equation. What is the equation of circle? X square plus y square plus 4x. Yes. What is the circle given? X square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 plus lambda into equation of tangent. मैंने यही तो बताया था कल. It is passing through. ये सर्किल किसके थ्रू पास कर रही है अभी 4 comma 0. This is passing through. Now this one is passing through 4 comma 0. तो इस ये 4 comma थ्रू पासिंग कर रही तो जल्दी से बताओ 4 square 16 plus 0 plus 4 4 16 minus 0 minus 12 plus lambda into 3 4 12 minus 0 minus 7 is equal to 0. तो कितना
लैम्डा वैल्यू कितना जल्दी 20 plus 5 lambda. So lambda equals to minus 5. 20 प्लस लैम्डा 5 लैम्डा 5 lambda. 0, तो 5 लैम्डा इज Minus इक्वल 5. टू -20, सो लैम्डा इज इक्वल टू -4। कोई डाउट इधर? कुछ नहीं है ना? तो बताओ इसका इधर सब्स्टिट्यूट करो उधर। x स्क्वायर प्लस देयरफॉर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x 6y माइनस 12। तो लैम्डा कितना था -4 इंटू कितना 3x माइनस 3y, 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल 0। इधर 3x माइनस 4y मिला है मुझे, तो 3x माइनस 4y इधर 4y, तो माइनस 4y है। चलो सॉल्व दिस, तो फाइंड आउट करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 माइनस 12x plus 16y plus 28 is equal to 0. So x square plus y square minus 8x plus 10y plus 16 is equal to 0. What is the radius? It became a circle now. What is the radius? Radius is equal to g square plus f square minus constant. बताओ जल्दी से क्या मिलेगा? So what is g value? G value is what? Minus 2g is equal to minus 8. G value is what here? What is g value? G value, what is G value? Okay. G value is 4 and minus 2f is equal to what? Minus plus 10. So f is equal to minus 5. So substitute here. So 16 plus 25, C value कितना? Minus 16. तो ये गया तो 5. Radius is 5. कोई doubt? Understood, children? So how what's happening here? Look at this. If a circle passing through the point 4,0, कौन सा circle pass कर रही है? हाँ, this circle is passing through 4,0 and touches the circle. That circle is touching to this circle and passing. Look at this here. Circle, a circle. Circle passing through the point 4,0 touches the circle. This one. ये circle, ये कौन सा circle? Externally at point. Externally at point. ये देखो. Touches the circle. हाँ. Passing through 4,0 touches externally externally at my 1, minus. देखो ये tangent हो गया मेरा, तो externally somewhere at my 1, minus 1. Then find out the radius. So I know that guys, नहीं तो मैंने कल के क्लास में बताया था, डायग्राम देखो मैंने बताऊंगा। देखो ये देखो, ये वाली देखो, हाँ एक्सटर्नली समवेयर एट एक्सटर्नली, तो s प्लस लैम्डा ये वाला, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्किल, हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट नो, हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट डन विद दिस, नॉट दिस वन, नॉट दैट वन, सॉरी, कहाँ है इधर, ये वाला मैंने s प्लस लैम्डा इज इक्वल 0, s प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। लुक एट दिस सर्किल समवेयर, this is a tangent passing through 4,0, this is a circle which is passing through 4,0 and touches the circle x square plus y square, x square plus y square plus 4x minus 6y is equal to 0, this circle given and which is passing through 1, minus 1। तो इसमें डालो s प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसमें डालो लैम्डा वैल्यू मिलेगा, लैम्डा वैल्यू से फिर से उसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने से मुझे और एक इक्वेशन मिलेगा सर्किल का। देखो this circle is passing through 4,0, from this I got lambda value, after getting lambda value again I substituted, I got circle equation, from that I got radius value। Clear? Any doubt? Shall we move forward now? Yes, sir. Very good question। number of common tangent, ये जल्दी से मुझे 30 सेकंड में बताना चाहिए, 30 सेकंड जस्ट। so the number of common tangents to the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 8y plus number of common tangents, जल्दी से बताओ।
कैसा करेंगे कॉमन टेंजेंट? पहला मुझे बताओ इसका सेंटर क्या है, जल्दी से इसका सेंटर फाइंड आउट करो, इसका सेंटर फाइंड आउट करो, उससे रेडियस मिलेगा मुझे। जल्दी जल्दी से बताना चाहिए अभी। Sir, center is 2,3. As equation of tangent you can do by using application of derivatives as well, but you didn't finish with the application of derivatives, right? So that is the reason I didn't use application of derivatives in the previous question. So if you done with application of derivatives, I would have used directly I would have used application of derivatives concept for finding equation of tangent. Equation of tangent find out करने के लिए मैंने यूज करता था कौन सा वाला कैप चैप्टर, application of derivatives, but you didn't do that. That's for the reason I just didn't use that. देखो what is C1? जल्दी से बताओ, what is C1? 2,3, sir. Yeah. C1 is equal to 2,3. What is radius? 5. 9 plus 12. तो कितना 5. Then what is C2? C2 is -3,9. -3,9. Very good. What is radius 2? 9 plus 81 minus 26. तो 90 minus कितना? 8. 64 तो 8. What is that? अरे भाई देखो क्या am I satisfying with this C1 C2? What is C1 C2 here? Tell me distance between these two. 25 plus 36. 13. Huh? 30, sir. Square root of x2 minus x1 whole square, तो 25 plus y2 minus y1 whole square, so 144. Sorry, not 12 square, no 144. Yes, sir. तो 13. 13. R1 plus R2 कितना? 13. देखो C1 C2 plus is equal to R1 plus R2 है तो कितना common tangent? Tell me how useful this is one. देखो कितना यूज हो रहा है. देखो C1 is equal to C1 C2 is equal to R1 plus R2 आया तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा देख लेते हैं हम लोग कल के क्लास में नोट्स पिछले वाला नोट्स देखो कितना कॉमन टेंजेंट है इधर देखो. if you gone through this, how much it would have been useful that one. आया समझ? देखो straight away it is common tangent, 3 common tangent. आया समझ? Yes, sir. Yes, 1 second. चलो 3 common tangents. So this is what I told yesterday, isn't it? Just look at this. So how many common tangents now? 3 common tangents.
And next question. If the curves touch each other at a point largest value of k. I think we have solved this question. We have solved this question. So no need. We have done already. We have done already. If a line y is equal to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 1, and it is perpendicular to a line कुछ भी ले लो L1, ठीक है. So where L1 is the tangent to the circle x square plus y square is equal to 1 is a point 1 by root 2 comma 1 by root 2. Then what we have to find out, and it is perpendicular to the line L1 and is a tangent to the circle x square plus y square is equal to 1 is a point 1 comma 2. Then equation, what equation will happen? Look at this. मुझे फटाफट जल्दी से बताइए. Make it fast guys. You start solving. I'll be giving the options. Come on. Look at the question. What is given? If a line y is equal to mx plus c is a tangent. Raghav, are you here, Raghav? Hello? Yes, sir. Raghav, in previous question, what happened is, look at this here. He is asked us to find number of common tangent. I just found C1, C2, radius 1, radius 2. So this equation is satisfying here. Look at this, C1 is equal to, so C1, C2 is equal to R1 plus R2. R1 plus R2. So from this, I'll be getting 3 common tangents. Is it? आया Yes, समझ? sir. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो 3 कॉमन टेंजेंट ही होगा ना कल के क्लास. Yes. Yes, sir. Suppose देखा हुआ तो आपको पता चलेगा. ठीक है. Solve this question. If a line y is equal to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 1 and it is perpendicular to a line L1 where line 1 is a tangent to the circle x square plus y square is equal to 1 at the point. देखो ये बड़ा वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन. This is a circle. If a line y is equal to mx plus c is a tangent to the circle. Because this is what here. This is my point. This is my center. What is the center here? Center देखो. -3 अच्छा 3 comma 0. आया समझ? So if I just make a tangent here, tangent, it is perpendicular here. This is okay. ये तो मुझे पता है. This is perpendicular. A line y is equal to mx plus is a tangent to the circle. This one. And it is perpendicular to line L1. ये क्या है? Perpendicular to किसका है? This one line. Line L1. देखो, this is perpendicular to line L1. तो ये perpendicular है हमारा line के लिए. आया समझ? Yes. And this line L1 है ना? This is line L1. This is touching. This is the tangent of which circle? This one. देखो ये क्या होगा? ये इसका tangent है. देखो ध्यान से. This line is there, no? This line is a tangent to the circle. Yes. थोड़ा इसको एडजस्ट में करेंगे यार. देखो ये ऐसा है.
आया समझ? देखो इसका सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल? 0,0, हियर -3,0 सेंटर, तो इधर 0,0 सेंटर, टचिंग एट द पॉइंट व्हाट इज गिवन 1/√2, 1/√2। ठीक है, आया समझ? आ रहा है गाइस? नाउ फाइंड इट आउट इक्वेशन। ओके, चलो, this is not, let us say this is L2 my, but this is line 2. What do you have to find out? Make it fast. This is, let us say point A, this is a point B. कोई समझो, ये point A, point B. देखो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी करो। Just if you find out slope, it will be very easy, isn't it? इसका slope find out कर लो, आपको बहुत आसान हो जाएगा। If you find out slope of this, it will be very easy. इसका slope find out करने के लिए क्या करना है? What is your name? Raghav, do you know how to differentiate? Raghav, Yes, sir. आपको differentiation पता है ना? हाँ सर। बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन पता है तो बस देखो मैंने क्या करूंगा, फॉर फाइंडिंग स्लोप का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टैंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ Yes. टैंजेंट। हाँ, लाइन L1 देखो मैंने क्या करूंगा, पहले मैंने क्या करूंगा देखो, स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या करना है, देखो किस सर्किल को टच कर रही है, ये सर्किल को। देखो x² + y² = 1 दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? स्लोप ऑफ मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, स्लोप मतलब स्लोप कैसा फाइंड आउट करने के करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो स्लोप आ जाएगा देखो 2x + 2y इंटू इनर फंक्शन dy/dx = 0। तो मुझे क्या मिलेगा, dy/dx क्या मिलेगा बताओ, dy/dx -2x, तो इधर Yes, 2 sir. से बचा है तो 2 कैंसिल, तो x/y ना। आया समझ? Yes, sir. तो dy/dx, Yes, sir. हाँ, इसका इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, इट इज पासिंग थ्रू व्हाट 1/√2, 1/√2, तो क्या मिलेगा मुझे देखो जल्दी से बताओ, पासिंग थ्रू तो -1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/√2. तो -1 मिलेगा। इस किसका है, स्लोप ऑफ लाइन L1। Okay, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखो मुझे ये मिला है स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये क्या है, ये टैंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है अभी, दिस वन, लेट अस से दिस इज माय m1। ओके, मेरा ये क्या है, ये लाइन है सर्किल टचिंग y = mx + c, ये वही, दिस इज व्हाट ही हैज गिवन, लुक एट दिस, अ लाइन y = mx c इज अ टैंजेंट ऑफ अ सर्किल, इसका ये सर्किल का टैंजेंट है ये, आया समझ? हाँ, देखो अभी ये स्लोप क्या होगा, जल्दी से बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये स्लोप क्या होगा, अगर ये इसका ये लाइन का स्लोप m1 बताया मैंने, क्या क्या आया था, 1 आया था, तो इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर है भाई, क्या Yes. होगा, हाँ So M1 का था -1, तो M का होगा 1. 1, क्यों, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स क्या होना चाहिए, -1, तो m1 तो m1 तो -1, तो देन m2 = क्या होगा, +1 होगा। Yes, sir. आया समझ? सिंस m1 m2 should be -1, that's how you must take। आया Okay, समझ? sir. देखो व्हाट इज m2 हियर, दिस इज m2, मैंने इसको मान लो m2, y = m2 x + c। हाँ, देखो देखो, हाँ देखो, इधर m है, मिल गया मुझे, क्या करेंगे अभी, मेरा m ये है, तो देखो मेरा m2 = 1 है, तो मेरा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये टैंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, y = x + c,
सर नो Yes, sir. बन जाएगा भाई, y इज इक्वल एक्स प्लस Yes, सी। sir. दिमाग लगाना बस, आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, y इज इक्वल mx प्लस सी, तो y इज इक्वल एक्स प्लस सी, लॉजिक। देखो ये इधर से थोड़ा मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, देखो देखो इधर मुझे बताओ, ये तो b है ना मेरा, मैंने पॉइंट मान लिया b, यू अंडरस्टैंड, इधर पॉइंट मान लिया था b। अब ये भी तो रेडियस ही है ना, आया समझ, आया समझ। सी हियर रेडियस, Yes, sir. ये भी इक्वल रेडियस। देखो देखो, मुझे एक पता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या है फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। अरे भाई डिस्टेंस, ये तो रेडियस, रेडियस इज इक्वल ये भी इधर, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, देखो भाई डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये क्या होता है फॉर्मूला, बताओ आपने क्या स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, ये x प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट। आया ना समझ। Yes, sir. अरे भाई ये तो है ना, दैट इज इट इज लुकिंग लाइक द लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल x प्लस सी। ये लाइन क्या है मेरा, अरे रे एक मिनट, मेरा ये लाइन क्या है, मुझे ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, मींस रेडियस। ठीक है, मुझे Yes, रेडियस sir. करना है, अप्रोच। देखो ये लाइन से उसका डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला है व्हाट इज द डिस्टेंस, ये भी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो था, दिस इज Yes, व्हाट sir. फॉर्मूला फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बताओ मुझे अभी क्या आएगा, 3 इंटू क्या आएगा, 3 इंटू एक्स, तो 3 प्लस सी डायरेक्टली, तो वही जीरो है ना, तो 3 प्लस सी डायरेक्टली, आया समझ। हाँ सर, हाँ. हाँ, ए का वैल्यू 1 है बेटा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू सी ही है इधर, तो हम्म, टेंशन मत लेना। देखो तो नीचे 1 हो गया. हाँ, देखो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, A की वैल्यू 1 है 1, और B की इधर वैल्यू y का 1. वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -1 है, नॉट 0 हियर, -1 है बी का वैल्यू। देखो ये इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा ना, सर नो, Yes, sir. Yes, sir. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, तो मुझे क्या बताएगा, क्या आएगा बताओ डिस्टेंस, ये भी फाइंड आउट करो जल्दी से। ए वैल्यू, सो ए 3x प्लस सॉरी 3 प्लस सी, बस y का वैल्यू 0 है ना इधर, देखो ये 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो मुझे 3 प्लस सी बचेगा इधर, तो इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, सो स्ट्रेट अवे कैन आई राइट 2 इन द डिनोमिनेटर नाउ। 3 plus C by root 2. देखो ये रेडियस, ए सर्किल का रेडियस क्या था बताओ, सर्किल का रेडियस क्या था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल बेटा, बताओ ये क्या है, 1 है ना, आया समझ, हेलो, Yes, आया। sir. सर एक और, सर समझा नहीं हूँ 1 कैसे है. ये रेडियस है, मुझे मिला 3 प्लस सी बाई रूट 2, रेडियस कितना है, देखो रेडियस 1 है दिया है, 3 प्लस सी बाई, हाँ, C equals to root 2. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, पाओ, बताओ जल्दी से। 6C equals to 2 to C square plus 6C plus 7 equals to 0. देखो लाइक बहुत बच्चों ने क्या करेगा, अरे 3 प्लस सी होल स्क्वायर इसको रूट 2, तो 6c प्लस सी स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0, दिस इज माय आंसर। देखो कितना आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बस खत्म, कुछ नहीं है, 6c स्क्वायर प्लस 6 ये है मेरा ऑप्शन, प्लस 7 है ना। हाँ, बच्चों ने क्या करेगा, बच्चों ने बहुत मेनी ऑफ यू मेक ए मिस्टेक, शैल आई टेल व्हाट एग्जैक्ट द मिस्टेक इज, 3 प्लस सी इज इक्वल रूट 2 है, तो c इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 3। सर मुझे c वैल्यू मिल गया, तो मैंने क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लूंगा। भाई वो बहुत क्या बोलते हैं, इनसेन आइडिया है, दैट इज इनसेन आइडिया, इट टेक्स सच अ लॉट ऑफ टाइम, क्लियर, डोंट गो फॉर दैट। देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो स्ट्रेट अवे मुझे इक्वेशन मिल रहा है, तो क्यों जाऊं मैं ऐसा दैट वे में, व्हाई शुड आई गो इन दैट वे, आया, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट हियर you people, Yes, sir. yes guys, it like I understand that circle concept होता है पूरा लॉजिक पे डिपेंड होता है,
थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। तो दिमाग लगाने में आपको क्या होना चाहिए, रिवीजन आना चाहिए, रिवीजन करना होना चाहिए। यू मस्ट रिवाइज करो, सब्स्टिट्यूट, आई मीन अप्लाई करो कॉन्सेप्ट। आया समझ? एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट्स? सो व्हाट आई हैव डन, लुक एट दिस, लेट मी टेल यू। इफ अ लाइन, कुछ लाइन देखो, मैंने फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2020, दिस इज अ 2020 क्वेश्चन, 2020 जेईई क्वेश्चन। देखो क्या किया है इधर, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट। किसका टेंजेंट है? तेरा नहीं, मेरा नहीं, ये सर्किल का। किस सर्किल का? देखो ये सर्किल का, ये सर्किल का, which has radius 1 and center 3,0। तो मैंने ये सर्किल का ये टेंजेंट बना दिया, दैट इज अ लाइन y इज इक्वल mx प्लस सी। आया समझ? हाँ, ध्यान से सुनिए। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। ये किसके लिए परपेंडिकुलर है? लाइन L1 के लिए। तो L1 ये मैंने इधर डाल दिया, I just drawn the L1 here. This is my L1. And इधर L1 क्या है? ये L1 क्या है? Tangent of the circle। किसका? ये सर्किल का tangent है। तो इस सर्किल का इसका सेंटर क्या है? 0,0 हो गया। आया समझ? हाँ। एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 1/√2, 1/√2। देन कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? देखो बेटा, मुझे पता होना चाहिए पहला। देखो लाइन 1, ये लाइन 1 देखो, ये दिस है लाइन 1, लाइन 1। मुझे ये लाइन 1 किसका है? ये लाइन 1 किसका है? किस सर्किल का है लाइन 1? व्हाट इज द सर्किल विच ये लाइन 1, L1 इज द टेंजेंट ऑफ विच सर्किल? दिस वन ना। आ रहा है समझ? L1 इज द टेंजेंट ऑफ विच सर्किल? x² + y² = 1 सर्किल, इजंट इट? आया समझ? हाँ, उसका टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। राघव, सो व्हेन यू लर्न एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यू विल गेट टू नो दैट टेंजेंट मीन स्लोप ऑफ, क्या क्या बोलता है, स्लोप, किसी का टेंजेंट, आई मीन किसी का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ओके सर। टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, वही होता है। आया समझ? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ही क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, derivative of the particular function. So if I just find out derivative of this particular function, I'm getting this dy by dx is equal to what? Minus x by y. Minus x by मतलब x वैल्यू दिया है 1/√2, 1/√2, मुझे कैंसिल करके m1 वैल्यू आई गॉट 1। तो मुझे just slope of line, slope of this line I got 1, and what would be the slope of this line? Perpendicular है भाई, तो of course m1 m2 is equal 1 होगा। मुझे इधर सब्स्टिट्यूट करने से ये लाइन मिल रहा है। आया समझ? This line I'm getting now. So after हाँ getting this line, look at this, listen to me carefully here. Y is equal x plus c I got. हाँ, now this line is a tangent of this circle. This line is a tangent of 3,0 center circle. मुझे पता है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है बस। देखो मुझे ये रेडियस फाइंड आउट करने से मुझे साफ साफ आंसर स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा। Why? Because he has given everything. Look at this in terms of c. देखो, so मुझे रेडियस फाइंड आउट करने से रेडियस फॉर्मूला इज व्हाट? रेडियस इज व्हाट हियर? AB is what? Distance of a point from a line. Shall I apply that? Distance of a point from a line. एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस, फॉर्मूला ax plus by plus c divided by square root of a square b square. In straight line you might have learned guys. ये साफ साफ ये हम लोग ये फाइंड आउट कर लिया इधर किसके साथ? ab is equal to radius, ab is equal to radius here, तो is equal to 1, squaring on both side, straight away you will get in terms of c. Clear? कोई डाउट? कोई दिक्कत आ रही है इधर समझने में? कोई डाउट? Any doubts you people are facing here guys? No, sir. नो सर, Clear? क्लियर सर। Are you sure? चलो देखो, मैंने ये क्वेश्चन कितना आदमी किया होगा, मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। लेट मी टीच यू नाउ। अ सर्किल टचेस, अरे यार सर तो बहुत होमवर्क देता है मगर कुछ नहीं। अरे भाई मैंने बहुत होमवर्क देता हूँ, आई जस्ट डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। सर ने होमवर्क दे दिया बस, बट आई डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स। Bad boys and bad girls. Look at this. And is through passes through the point. ये भी 2020 का क्वेश्चन है। Then which of the following lines is not a tangent
जल्दी से बताओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे अभी बताना चाहिए। I'll give 1 minute of time. Let's see how many. Not 1 minute, just 40 seconds. जल्दी जल्दी। हाँ, a circle touches the y-axis at point 0,4. Circle touches the y-axis point 0, किधर 0,4 पे कर रही है, ये सर्किल इधर कर रही है, ये तो x एक्सिस, ये तो y एक्सिस। बताओ जल्दी से। Make it fast. Pick, 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 pick. Yes, got it? Yes. Guys, make it fast. Done? Wait a minute, sir. मुझे ठीक है, मुझे अप्रोच बताइए, अप्रोच कैसा होना चाहिए? देखो भाई इधर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट ए टेंजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेंजेंट, मतलब टेंजेंट कौन सा होता है वो फाइंड आउट करने से मुझे पता चल जाएगा, कॉमन सेंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट ए टेंजेंट टू द सर्किल। देखो देखो, विच वन इज टचिंग, विच वन, किसने टच कर रहा है, एक्स। देखो इसका इक्वेशन लगो, इसका इक्वेशन लगो भाई, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर y1 whole square plus lambda x प्लस लैम्डा टाइम्स, बताओ सर्किल प्लस लैम्डा, बताओ x. लैम्डा, लैम्डा x एक्सिस, वी आर जस्ट x एक्सिस टचिंग Yes, इट। sir. बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y एक्सिस के इक्वेशन है ना, उसीलिए मैंने बताया, उसीलिए मैंने लिया। हाँ बताओ। Passes through 2,0. पासेस थ्रू 2,0. Question mark given. So 2 minus 0 whole square, 0 minus 4 whole square 0, plus 2 lambda equals to 0. लैम्डा 4 फाइंड आउट plus करने 6. के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। इट पासेस थ्रू द पॉइंट किस पे, 2,0। 2,0. सर लैम्डा की वैल्यू -10 आ रही है, हाँ, लैम्डा की वैल्यू -10 आ रही है क्योंकि और 2 स्क्वायर 2,0 से पास प्लस कर रहा है तो 0 वैल्यू पुट कर दी तो तो लैम्डा 16 -10 आ रहा है। Yes, sir. Lambda is -10, sir. -20, तो लैम्डा वैल्यू -10 है। दिस इज अ क्विकेस्ट अप्रोच, इजंट इट? यस सर। देखो मैं लैम्डा सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस 16 माइनस 8y प्लस -10x। सब्स्टिट्यूट क्या है, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 से मैंने लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया इधर। आया समझ? हाँ Yes, sir. देखो ये पूछ रहा है नॉट ए टेंजेंट, ये बहुत गड़बड़ कर देगा। many of you might make a mistake, नॉट ए टेंजेंट पूछ रहा है। देखो बताओ, देखो इससे क्या क्या बनने वाली है मुझे, इसका सेंटर एंड रेडियस बताओ जल्दी, सेंटर क्या है इधर,
सेंटर क्या है? 5, 4। Yes, sir. 5. रेडियस क्या है? रेडियस बताओ। 25 प्लस 16 माइनस 16, तो बिल्कुल मुझे Radius मिलेगा 5. 5। देखो देखो, मुझे ये चीज मेरे पास आ गई अभी, ये चीज मेरे पास आ गई, तो हाउ कैन आई चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेंजेंट? देखो बताओ, मैं चेक इन ऑप्शन। समझो समझो, मेक इट फास्ट। देखो देखो, मैंने क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल ले रहा हूँ, उसका टेंजेंट नहीं रहा हूँ। दिस अ टेंजेंट, डोंट टेल दैट एज अ टेंजेंट, बट कंसीडर एज अ टेंजेंट। आई एम नॉट गुड एट it guys. ठीक है, ओके। समझो 5,4 आया रेड, दिस अ परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज, तो ये तो रेडियस ही है ना 5। सर नो भाई, ये लाइन है, ये टेंजेंट इक्वेशन क्या था? ये तो लाइन है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लाइन क्या मिला मुझे? देखो देखो, लाइन तो मुझे बताओ, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, ax प्लस बी वाई प्लस प्लस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ इसका आंसर क्या है भाई? क्या है बताओ ना जल्दी, कहाँ है? हाँ, तो मुझे देखो, लेट मी टेक लुक एट दिस हियर, let us choose any option। देखो, if you choose any one option, let us say the first or second, third or fourth, let me check second option. Let me take second option. If I take second option, look at this, how can I just choose that? Second option, what is a value? 3, x value is what? 5 plus minus b into 4 minus 24 divided by 9 plus 16, so 5, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 15 minus 15. 16 minus 24 by 5, is it equal to radius or not? ये तो रेडियस है ना, रेडियस, आई एम फाइंडिंग रेडियस, ये रेडियस के Yes, sir. बराबर आना चाहिए। देखो कितना आएगा, 15 minus 25. तो 5 से 5 आ जाएगा R2. 25 by 5, तो 5 आ जाएगा, तो रेडियस के बराबर ही आ रही ना, तो रेडियस के बराबर, तो हाँ. इक्वेशन 2 इज नॉट ए टेंजेंट। देखो बोथ आर इक्वल आर नॉट? टेल मी। Guys, it is yes, both are equal, so it can be tangent. If it is no, then B will be the option. Clear? If it is no, then B will be the option. Guys, look at this, option B is a tangent. He is asking for not a tangent. आ रहा है Not a समझ आपको? tangent. देखो ऐसा सब, like every option you have to check it out. Whichever is giving a radius to you, that is not your. Whichever not giving a radius to you, that is your option. देखो option B, it's a tangent here. आया समझ? Why? Because I am getting an exact हाँ radius. सर. मैचिंग। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऐसा करो। मुझे लग आप आंसर इज डी होगा, आपका आंसर इज डी होगा। डी इज नॉट ए, मैंने आंसर दे रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट Okay, sir. आंसर डी। आई एम गिविंग यू एन एडवांस, चेक इट आउट वेदर यू आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव डन विद द टाइम गाइस। सो ये टाइम लगता है आपको, क्या बोलता है, थोड़ा क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, थोड़ा ये करने में, वो करने में, मगर प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस इट फॉर Okay, sir. multiple times, and like multiple times you revise your concept, and then go for the questions, solve multiple questions. Clear? Thank you children, so let's retire now, we'll meet in the next session. Goodbye, thank you. Thank you, sir.